ویڈیو پلے کیجیے سر نبیل گبول والی. کیس چل رہا ہے فورن فنڈنگ کیس کا، اور اس کے اوپر جو ہے ورڈکٹ آ گیا الیکشن کمیشن کا، اس کے اوپر انکوائری بھی ہو رہی ہے. اس کے جو میں نے جائیداد دیکھے ہیں اور جو انہوں نے یہاں پر فائل کیا ہے، اس میں سے کچھ جو ہے اس میں ذکر نہیں کیا ہے. تو جو پراپرٹی یا ایسیڈ اپنا چھپاتا ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کی مد میں آتا ہے. تو وہ میں نے سارے ڈیٹیلز اس میں نکال کے پیش کر رہا ہوں ریٹرننگ آفیسر صاحب کو، اور یہ جو ہے میرا آبجیکشن ہے ان کی نامنیشن پیپرز کے اوپر. جی آپ نے دیکھی ان کی ویڈیو، اور تو اسی پہ بات کا جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے فوزیہ اس کے اوپر آپ کا کامنٹ لوں گا کامران سے، اس کا جو سیاسی سیاق و سباق ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. جی فوزیہ. آئی تھنک یہ جو آپ کا یہ والا سوال ہے یہ توشہ خانہ والے کیس سے بھی جڑا ہوا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہو تو میں دونوں کو کریں گے. اوکے ہاں دیٹس بیٹر. خان صاحب کا ہمارے ساتھ ایشو جو ہے نا وہ اس وقت یہ چل رہا ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اسپیشلی آئین قانون کی حکمرانی عملداری کے لیے، وہ اس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے اصول ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. جیسے وہ حضرت عمر کی مثال تو دینا چاہتے ہیں، مگر اگر وہی سوال ان سے کیا جائے تو وہ شرک اور کفر میں آ جاتا ہے. میں اگر خان صاحب کی جگہ ہوتی تو بہت ایزی پارٹ ہے. آپ کے وفاقی وزراء مختلف پریس کانفرنسز کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ڈکلیئرڈ ہے، کوئی ایشو نہیں. تو روز خان صاحب قوم سے خطاب کرتے ہیں تو آرام سے وہ بیٹھتے، 5 منٹ کی بات تھی، وہ کہتے جناب یہ ہے 10 لسٹ تحائف کی، یہ میں نے اس وقت میں خریدے، یہ ان کی مالیت تھی، یہ ان کا 20 یا 50% بنتا تھا، یہ میں نے جمع کرایا، یہ کیبنٹ میں گیا، یہ اس کی رسید ہے، یہ آمدنی کے میرے ذرائع ہیں جہاں سے میں نے خریدا، اور یہ ہے میری ٹیکس ریٹرن. اللہ اللہ کے خیر صلاح. اور جو میں نے بیچے وہ بھی بیچ دیے نا، تو یہ پیسے جو آئے وہ بھی میرے موجود ہے، میری رسیداں پوریاں نے، تسی اگے کرو. مگر ایسا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب اس میں ایشو کیا بنتا ہے؟ اس میں 2 ایشو ہے کہ آئدر آپ کے ایف بی آر کے جو انکم ٹیکس سٹیٹمنٹس ہیں اس میں نہ ہو، یا کنسیلمنٹ وہاں ہو، یا آپ نے جو الیکشن کمیشن میں ایسٹ اینڈ لائبلٹیز جمع کرائی ہوتی ہیں وہاں ہو. دونوں میں آپ نے نہیں جمع کرائی. میں فی الوقت اس کے اوپر رہ رہی ہوں کہ آپ نے پورا نہیں کرایا تو دونوں میں بہت چھوٹی چھوٹی پینلٹیز ہیں، وہ پینلٹیز لگ کے ریگولرائز ہو جاتا ہے. مگر کیا بات وہاں رکتی ہے؟ نہیں. الیکشن کمیشن، ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی بات کی تھی کہ الیکشن کمیشن کو اپنی پولیٹیکل پارٹی کی فائنینسنگ، کیمپین فائنینسنگ اور ان کو ایویلویٹ اور ویلویٹ کرنے کے انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ کرنی پڑے گی، کیونکہ ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے 137(4) جو الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے ایسٹ ڈیکلیریشن جھوٹ کی بنیاد پر یا غلط جمع کروائی ہو تو الیکشن کمیشن 120 دن کے اندر اندر اس پر کارروائی کر سکتا ہے. تو بادی النظر پہ الیکشن کمیشن سوتا رہ گیا، اور 120 دن اس سال کے تو گزر چکے ہیں کیونکہ 31 دسمبر تک جمع کرائی ہونی ہے، تو یہ ٹائم بارڈ لگتا ہے. اب آپ کو کوئکلی یہ بتا دوں کہ توشہ خانہ کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہے. توشہ خانہ کے آفیشلی کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں. ایک توشہ خانہ مینجمنٹ پروسیجرز ہیں جو پرائم منسٹر اپروو کرتا ہے. اس کے حساب سے 30,000 کی مالیت، کم از کم 30,000 کے لگ بھگ کی جو مالیت کا تحفہ کسی بھی ڈگنیٹری کو ملتا ہے، وہ کیبنٹ کی ڈویژن کی اپروول کے بعد، اس کی ایک کمیٹی ہے، اس کی اپروول کے بعد اس کو پہلا فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل ہے، اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے. جو 30,000 سے اوپر کے تحائف ملتے ہیں ہمارے پاکستانی کی ڈگنیٹریز کو، وہ 2018 تک پالیسی 20% تھی، اس کے بعد 50% ہو گئی. وہ آپ جمع کروائیں اور لے لیں. خان صاحب نے پیسے جمع کروائیں 50%. اب ایشو یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ابھی آ رہا ہے کہ یہ پیسے، اتنی بڑی جو سٹوری ہے، یہ پیسے اتنے کم کیوں ہیں؟ ویلویشن کون کرتا ہے؟ ایک ٹیم ہے جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، جہاں سے ایویلویٹرز جو ویلیو کرتے ہیں، جو ٹیکنیکلی کوالیفائڈ لوگ ہیں. دوسری ٹیم ہے ایف بی آر کی. تو کیبنٹ ڈویژن جب اس طرح کی چیز بیچنی ہو، وہ کہتے ہیں دونوں ویلیویٹر آپ بتائیں اس کی کیا قیمت بنتی ہے، اور پھر اس کی قیمت کے اوپر 20 یا 50% آپ دے کے، خان صاحب نے 50% تو کہہ رہے ہیں جی لیا دیا ہے.
तो देकर ले सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि हम खान साहब के ऊपर तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी आपने 38 लाख की घड़ी 7 लाख में कैसे ले ली, ना ये 20% बनता है ना ये 50% बनता है, मगर हम ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे कि कैबिनेट डिवीजन ने वो वैल्यूएशन किससे कराई, वो वैल्यूएटर कौन थे जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल ग्रास की कस्टमाइज गोल्ड की वॉच की कीमत जो है वो 38 लाख लगाई, वो कैसे लग गई ना। तो कोई एक तरफ को क्वेश्चन करे, क्वेश्चन को एंड टू एंड हमें देखना है। तो अगर हमने वैल्यूएशन ही कम लगाई तो वैल्यूएशन कम लगी तो फिर उसके जितने मर्जी पैसे आप दे के ले लें, तो वो अंडर वैल्यू जिन्होंने किया उनकी भी तो गर्दन पर हाथ रखिए कि वो वहां पर कहां से जाएगा। तो इशू हमारा जो है ना वो ये है कि कंसीलमेंट अपनी जगह है, छोटी सजाएं देकर आप बच भी सकते हैं। और नबील गबोल साहब का कहना कि जी उन पर केस, और देखिए केस हुआ, वो केस का फैसला आया, अभी तो वो चल रहा है, तो वो अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। मगर इशू ये है कि अगर 1 2 3 डिफरेंट जगह से एक टेक्निकल नैरेटिव या टेक्निकल आपके खिलाफ बातें इकट्ठी हो जाएंगी कि यू आर कंसीलिंग योर फंड्स, यू आर कंसीलिंग द फैक्ट्स, तो फिर आप 62 63 की तरफ राइप होते जाएंगे। मेरे ख्याल में हुकूमत अच्छी गेम प्ले कर रही है कि छोटे छोटे वो कह रहे हैं ना रोड़े इकट्ठे कर रही है कि वो चारों तरफ जमा होते जाएं कि भाईजान ये भी है ये भी है। किस किस के ऊपर आप कहेंगे कि ये मुझे मालूम नहीं था, मैंने तो सिर्फ तस्दीक कर दी, एफिडेविट नहीं है, ये जो था ये मेरे टैक्स रिटर्न वाले ने कर दिया, वो पैसे कम दिए, वो तो कैबिनेट डिवीजन की वैल्यूएशन कमेटी का कसूर था, तो पायन मैं तो माल ही रहा ना फिर। जी अच्छा फौजिया, थैंक यू। आपने अच्छा उसका बैकग्राउंड दिया। कामरान, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आखिर में इन्होंने बात कही कि हुकूमत जो है वो छोटे छोटे रोड़े जमा कर रही है ताकि ये करने के लिए, वैसे तो ऑफिस की ये बात है कि मुझे भी ये जो है वीक केसेस लगते हैं, खुसूसन ये तोशा खाना वाला मामला, क्योंकि देखिए इसमें जो सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर तो नवाज शरीफ वाला इंसाफ करना है फिर तो यकीनन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बाकायदा ऑन मेरिट्स देखें तो मुझे ये केसेस ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई देते। बहरहाल कामरान, मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर कमेंट करें और थोड़ा ये भी बताएं कि इस्लामाबाद में चल क्या रहा है, क्या खबरें गर्म हैं आपके हलकों में। आई थिंक फौजिया साहब ने बड़ा तफसील से जो एक्सप्लेन किया, जो उसके फैक्ट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। आप एक एस्पेक्ट तो ये है कि आप जितनी मर्जी हकायक सामने ले आएं कि कोई इरेगुलरिटी कमिट की है खान साहब ने, कम से कम जो उनके सपोर्टर्स हैं वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसके लिए उनके पास 1001 लाख जो रीजंस हैं वो सामने ले आएंगे। तो ये तो एक्सरसाइज बिल्कुल बेसूद है कि शायद अगर आप हकायक सामने लेके आएंगे तो जो उनका वोटर है और सपोर्टर है वो अपनी राय बदल लेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा। एक चीज़ मैं ज़रूर और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मेरी भी एक रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट है उनसे बात हो रही थी जो इन मामले को, या तोशा खाना वाले मामले को डील करते रहे हैं। इसमें एक और इशू भी है, वो ये है कि तोशा खाना से बिल्कुल पहले 20% और 50% कीमत अदा करके आप तोहफा अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जो तोशा खाना के रूल हैं वो ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको तोहफा, तसव्वुर करें कि मुझे एक तोहफा मिला और मैं उसकी वैल्यूएशन करवा के और उसके बाद जो भी उसकी 20% या 50% कीमत है वो मैं फिर कौमी खजाने में जमा करा देता हूँ। जो रूल है वो ये कहता है कि तोहफा पहले तोशा खाना में जमा होगा और जो कीमत उसकी लगेगी, अगर वो 20% पे खान साहब ने लिए या 50% पे, तो आपने अप फ्रंट पहले वो पैसे देने हैं, फिर उसके बाद बेशक आप जाके बेचते रहें। यहाँ पे जो लगता है कि एक और बेकायदगी कमिट हुई है कि तोहफा खान साहब को मिला, वो शायद जो कीमती तहाइफ हैं वो उन्होंने तोशा खाना में पहले जमा नहीं करवाए, वो शायद अपने पास ही रखे, अपनी वैल्यूएशन करवाई। फर्ज करें कि जो भी एक उन्होंने घड़ी खरीदी और वो मार्केट में बेच दी 2 करोड़ की, और उसमें से लेट्स से कि 20% देना था 40 लाख, तो उस 2 करोड़ में से 40 लाख उन्होंने चुप करके जो है ना वो कौमी खजाने में जमा कर दिया। अगर ये भी एस्टेब्लिश हो जाता है तो ये इटसेल्फ इज आल्सो इरेगुलरिटी कि पहले जेब से आपने पैसे देने हैं, ये नहीं है कि आपने उसी तोहफे को बेच के उसमें से कट दे के आपने लगाना है। तो एक तो इसके अंदर ये चीज भी है। दूसरा बाकी इस पे मेरे ख्याल में इशू अब इसके अंदर यही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि उनके सपोर्टर्स ये चीज नहीं मानेंगे। वो बिलीव करते हैं कि जी खान साहब तो बहुत
ईमानदार हैं, सादिक और अमीन हैं, और अगर उन्होंने तोहफे बेचे भी तो वो उन्होंने किसी नेक मकसद के लिए बेचे होंगे। एक तौजी तो वो ये पेश करते हैं कि उन्होंने तोहफे बेच के कौन सा पैसे जेब में रखे हैं, वो तो शौकत खानम को उन्होंने दे दिए। लेकिन जाहिर है इस पर वो खान साहब खुद वजाहत कर सकते हैं। फौजिया साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर इतनी ज्यादा उन पर तनकीद हो रही है, इतने ज्यादा एक सवालात जो उनके अपोनेंट्स हैं वो उठा रहे हैं, तो 2-4 मिनट की गेम है, उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से वो आके कौम के सामने जो भी इसके हकायक हैं वो लोगों को बता सकते हैं। ये तो तोशा खाना की बात होगी। दूसरी जहां तक बात है इस्लामाबाद के अंदर क्या चल रहा है, आई थिंक इस्लामाबाद के अंदर जाहिर है कि जैसे आपने भी कुछ तस्करा किया कि बावजूद इसके कि खान साहब लाहौर में जाहिर है कि एक बड़ा जलसा उन्होंने किया और दबाव वो बढ़ा रहे हैं, आगे एक पूरी सीरीज ऑफ जो रैलीज हैं वो करने का वो इरादा रखते हैं, जो बज़ाहिर अभी तक लग रहा है कि शायद जो इमरान खान साहब चाहते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हों, वो शायद होते नजर नहीं आ रहे। और उस हवाले से जो एक ज़ाहिर है कि 2-3 फेजेस आए थे, एक तो 25 मई का ग़ालिबन जो उनका लॉन्ग मार्च था वो जब फिजल आउट हुआ, एक अपॉर्चुनिटी वो ज़ाया हुई। फिर थोड़ी सी एक होप या जो धचका लगा कोalition गवर्नमेंट को, वो जब ज़िमनी इंतखाबात में इनको शिकस्त हुई और पंजाब उनके हाथों से निकल गया। वो एक मौका था कि जब अगेन एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि शायद क्राइसिस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रहे हैं और हमें आम इंतखाबात की तरफ जाना पड़े। लेकिन वो भी चीजें फिर स्टेबलाइज हो गई। और अब जो एक और फैक्टर प्ले कर रहा है वो ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो आपकी मौशी सूरत हाल है, IMF की डील ऑलमोस्ट करीब होने के, हम ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डील के हैं, अगली किस्तों में मिलने वाली है। और उससे पहले ही जिस तरीके से डॉलर की पिटाई हो रही है और जिस तरीके से रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर सम और दी अदर IMF से पैसे हमें मिल जाते हैं, दोस्त ममालिक से भी पैसे अगर मिल जाते हैं और मईशत कुछ बेहतर हो जाती है और हुकूमत जो है वो कुछ अवाम को रिलीफ देने के काबिल हो जाती है, तो ये वो नुकात हैं कि जहां पर शायद इमरान खान साहब के लिए खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और उनका जो बयानिया कि उनको इक़्तिदार के हटाने के बाद पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है या पाकिस्तान का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है, वो जरा चैलेंज हो जाएगा। तो अभी एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि इमरान खान साहब बेशक बड़े जलसे कर रहे हैं, लेकिन जो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि कबल अज वक्त इंतखाबात हों, वो कम अज कम मुझे होते नजर नहीं आते, ना ही इस्लामाबाद के अंदर ऐसी कोई बाज़गश्त सुनाई देती है।